Hello dear students, now we will look how to draw the flow curve. It is the data, it is a winter 17 exam, university exam question. Here is the data of liquid limited, that is the Cassegrain apparatus test performed and the observation table is given. Okay. Here first row is the number of blows, that is 9, 21, 34 and 44, and corresponding water content is the 68%, 57, 47% and 40%. Here we have to calculate the liquid limit, flow index. Also here plastic limit, that is the 28% is given, and we have to find out the plasticity index. Okay, so already I taught you in class. Okay, and describe how to draw the flow curve. Now we will start. Here is the semi-log graph paper. In semi-log graph paper is the x-axis having the log scale and y-axis having the simple scale. Okay, so here on log scale there reading increase by multiple of 10. Okay, so it is the one cycle, it's second cycle, third cycle, and goes on. Okay, and here will be the water content and number of blows here on log scale. Okay, flow curve is nothing but the result. It is the curve showing the result of liquid limit test. Okay, so now look here, number of blows range is the 9 to 44, means we have to select the scale such that 9 and 44 must be covered. Okay, if we start it from 1, okay, if we given it 1, then it will be multiple. I already explained that the log scale is increased by multiple of 10. So here this reading will become 10. Okay, then this 10, then it is here the second log will be complete, second log cycle. So again it will the multiple of 10, that is the 100. Okay, then 100 it will be the 1000. So these are the way to use the log scale. Now here look, water content range is the 40 to 68, means if we given here start and again one thing I want to tell that the log scale never start from 0, it start from some value. Okay, and then it is increase multiple of that value. Here number of blows water content is 40 to 60. So if we given here the 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, such like the water content reading. Here is the number of blows and here is the water content. Water content. Okay, now first point here, number of blows is 9. Now look here, 1 to 10 there are the again smaller division. Okay, this और ये डिवीजन ना डिक्रीज होते जाते हैं. ठीक है, ये डिवीजन डिक्रीज हो जाते जाएंगे. तो ये रहेगा आपका 2. ओके, इसको मैं लिखती हूँ 2. ये 3, 4, ये रहेगा आपका 5, ये रहेगा 6, ये 7, ये 8 और ये 9 और ये 10. ओके, then again this is second division also contain the 10 small division. So this division will be of 20. Okay, it will be 30, it will be 40, it will be 50, it will be 60, 70, 80, 90 and 100, such like division is given. Okay, now 9, where 9 will become 9 number of blows, it is the 9, exact 9 है तो 9, it is line of 9. Okay, then 68 वाटर कंटेंट, तो ये 60 और 70 के बीच में आएगा. तो 60 और 70 के बीच में 5 डिवीजन है. 5 डिवीजन है मीन्स वो एक डिवीजन जो है वो 2 का है. ओके, तो 9 की ये जो लाइन है ये 68%, तो ये एक लाइन 2 की है मतलब 68 आपका यहाँ पे आएगा.
तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट मिल गया। सेकंड पॉइंट इज द 21 नंबर ऑफ लोज। नाउ हियर इज द 20। नाउ अगेन 20 और 30 के बीच में 10 स्मॉल डिविजन्स है। ओके, तो ये 30 माइनस 20 मतलब 10, तो ये 10 का डिफरेंस है टोटल इसमें, और इनके बीच में 10 डिवीजन है। तो ये एक जो डिवीजन रहेगी वो रहेगी 1 की, तो ये आपका 21 जो है यहाँ पे आएगा। ओके, तो 21 एंड वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू 21 इज द 57%। तो 57% मतलब ये 58 की लाइन है और ये 56 की है, तो इनके बीच में सेकंड पॉइंट मिलेगा। देन थर्ड पॉइंट इज 34। तो यहाँ 30 और 40 के बीच में 10 लाइन है, तो ये एक लाइन एक की रहेगी, मतलब 31, 32, 33, तो फोर्थ लाइन लेनी, 30 के बाद फोर्थ लाइन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और इस साइड आपका वाटर कंटेंट है इसके करस्पॉन्डिंग 47। ओके, तो ये जो 34 लाइन है इसके करस्पॉन्डिंग आपका वाटर कंटेंट आएगा 47, तो ये आएगा 48 और 46 के बीच में, मतलब यहाँ के आपका पॉइंट्स आएगा। ओके, थर्ड पॉइंट। देन द फोर्थ पॉइंट इज द 44। तो 40 के बाद 4 लाइन आएंगे स्मॉल डिवीजन, तो 40 के बाद चौथी लाइन हम गिनेंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग है वाटर कंटेंट 40, 1 2 3 4। ओके, तो ये हम लोगों को 4 पॉइंट मिले। अभी जो फ्लो कर रहे हो, कोई जैसे आपका ज़रूरी नहीं है कि सभी पॉइंट इसके लाइन पे आएंगे, लेकिन मोस्टली आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट लाइन की, आपके मैक्सिमम पॉइंट उस लाइन पे आ जाए या उसके नियर आ जाए। ठीक है, तो अभी तो ये एग्जाम का डाटा है इसलिए आपके सब पॉइंट मिल गए, लेकिन आप जब एक्चुअल में लैब में जब ये करते हैं परफॉर्म, तो बड़ा मुश्किल है ये लाइन आना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो 3 ऐसे है, यहाँ इससे मैं यहाँ लाइन खींचती हूँ। ओके, तो कुछ पॉइंट आर्बिट्रेरली इस साइड गए हैं और 2 पॉइंट ये मिल गए हैं। ओके, तो अभी मैं ये 100 तक इस साइड आपको फ्लो कर का जो ये फ्लो इंडेक्स निकालने के लिए काम में आएगा, तो मैं 100 यहाँ 100 तक एक्सटेंड कर रही हूँ और इस साइड में 10 तक कर रही हूँ। ऑलरेडी 9 नंबर आप लोज आए हैं तो आपकी क्रॉस ही होगी। अगर आपके 10 के अबोव ही नंबर आप लोज आए तो भी आपको ये 10 की लाइन तक इधर इस साइड एक्सटेंड करनी है। ओके, तो ये हो गया। अभी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट? Liquid limit is the value of water content corresponding to 25 number of loads. Already in theory we covered it. Okay, the 25 number of loads we have to find out, we have to show the point of 25. Okay, तो ये 20 नंबर ऑफ लोज है और ये 30, तो इनके बीच में जो फिफ्थ लाइन रहेंगी 1 2 3 4 5, तो ये आपका रहेगा 25 नंबर ऑफ लोज। ओके, ये दिस विल बी द 25 number of loads and water content, then this 25 number of loads we will extend up to the flow curve, just like we will extend the flow curve. Then water content corresponding to these 25 number of loads will be our liquid limit, that is liquid limit शोन बाय WL इक्वल टू कितने आएगी वैल्यू? अभी यहाँ पे ये 50 है और एक डिवीजन 2 का है, मतलब ये 52 है। ओके, दिस 50 और 52 के बीच में आया तो हम लोग ये 51 इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आपका जो वाटर कंटेंट है यहाँ पे आया है 51%। ओके, देन सेकंड आंसर क्या है आपका? लिक्विड लिमिट आया अभी यहाँ पे 51%, आपका सही एक आंसर मिल गया। ओके, फ्रॉम ग्राफ आंसर यहाँ पे लिखते हैं, फ्रॉम ग्राफ लिक्विड लिमिट, वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट फ्रॉम ग्राफ इट केम 51%. ओके, नाउ वी हैव फ्लो इंडेक्स। तो व्हाट इज आई गिवन द फ्लो इंडेक्स का फार्मूला मैंने आपको क्लास में बताया है। तो IF इक्वल टू W1 माइनस W2 अपॉन लॉग N2 अपॉन N मीन्स वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग, अगर यहाँ पे W1 है तो उसका जो नंबर ऑफ लोज है वो इसमें डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो यानी रिवर्स हो जाते हैं इसमें लॉग में, या फिर आप डायरेक्टली वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू 10 नंबर ऑफ लोज माइनस वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू 100 नंबर ऑफ लोज भी कर सकते हैं। ओके, तो
यहाँ पे ये जो वैल्यू W1 W2 हम लोग कोई 2 वैल्यू लेंगे फ्लो कर का। ओके, तो ये जो 2 पॉइंट आए हैं तो मैं ये 2 पॉइंट जो आए हैं फ्लो कर पे वो ले लेती हूँ। तो बिगर वैल्यू फर्स्ट लेंगे वाटर कंटेंट की। तो ये वाटर कंटेंट कितना था हमारा 68, ठीक है, ये वाटर कंटेंट 68 वैल्यू थी माइनस W2। तो मैं ये W2 कोई भी, आप वैसे नहीं है ज़रूरी कि ये इसके बाद का ही W2 लो, आप कोई भी 2 पॉइंट ये करके लो जो कर पे आते हैं या नियरली है, और ठीक है वो 2 पॉइंट लो। फिर नीचे भी जो नंबर ऑफ ब्लोज रहेंगे वो इसके ही करस्पॉन्डिंग रहेंगे। तो मैं ये वाला W1 लेती हूँ, W1, और ये W2 लेती हूँ। ओके, तो ये W2 तो इसकी वैल्यू जो है मेरी है 47 आई थी। तो 47 इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, या फिर डायरेक्टली थोड़ा कम ज़्यादा है तो आप ग्राफ के ऊपर की भी वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका वैल्यू मैं 47 ही लेती हूँ, ठीक है। 47 डिवाइडेड बाय लॉग, अभी क्या आएगा नंबर ऑफ ब्लोज N2, यानी 47 के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लोज आएंगे, ठीक है। ये जो वैल्यू रिवर्स होती है W1 के ऊपर की वैल्यू अभी 47 के करस्पॉन्डिंग यानी N2 आएगा। तो 47 के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लोज है, मैंने आपको क्लास में बताया है नंबर ऑफ ब्लोज एंड वाटर कंटेंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ ब्लोज आपके ज़्यादा रहेंगे तो वाटर कंटेंट कम आता है, जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ते जाता है नंबर ऑफ ब्लोज कम हो जाती है, सॉइल जल्दी ज्वाइन हो जाती है जब हम ग्रू कट करते हैं, तो ठीक है। तो 47 के करस्पॉन्डिंग मैं अभी यही के नंबर ऑफ ब्लोज लेती हूँ ऊपर के 34 डिवाइडेड बाय 9। नाउ आंसर विल बिकम 68 माइनस 47, दिस वैल्यू कम 21। और ये लॉग का कैसे निकालोगे, आपके कैलकुलेटर में लॉग दिया है तो 34 डिवाइडेड बाय 9 करोगे। ओके, तो इसको मैं इन्वर्स करती हुई ये आया है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स इंटू 21, तो आपका जो फ्लो इंडेक्स की वैल्यू आई है वो आई है आपकी 36.38। ओके, इस तरह से आपकी वैल्यू आई, ये आएंगी परसेंटेज में क्योंकि लिक्विड लिमिट हमारा परसेंटेज में है, तो ये वैल्यू भी ऑब्वियसली परसेंटेज में। दूसरा वे है फ्लो इंडेक्स का, अदर वे क्या करेंगे, अगर आपको पता है log 10 की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा 1 रहती है। तो अगर आप log 100 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये log 10 इक्वल टू 1। तो अगर ये नीचे की वैल्यू log 10 रहेंगी तो 1 आ जाएंगी, तो ऊपर में डायरेक्टली लिक्विड जो डिफरेंस है वाटर कंटेंट का वो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं ये फ्लो कर 100 तक और इस साइड में 10 तक अगर एक्सटेंड करती हूँ और उनके करस्पॉन्डिंग अगर वाटर कंटेंट लेते हैं तो डायरेक्टली उसका डिफरेंस आ जाएगा। मैंने समझाया है ये चीज़ आपको क्लास में। ओके, तो इट इज़ द वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू 100 नंबर ऑफ ब्लोज, और ये जो वाटर कंटेंट है ये रहेगा आपका करस्पॉन्डिंग टू 10 नंबर ऑफ ब्लोज। ओके, तो अभी नंबर ऑफ ब्लोज के रिवर्स में रहता है वाटर कंटेंट, जो वाटर कंटेंट पहले आता है तो क्या आ जाएगा, ये वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू 10 नंबर ऑफ ब्लोज है आपका आ रहा है 68। तो ऊपर में आ जाएगा IF की वैल्यू आ जाएंगी 68 माइनस वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू 100 आ रहा है आपका 28 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। ये 28 के थोड़ा ऊपर है तो हम लोग 28.3 ले लेते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये आ जाएगा आपका 68 माइनस 28.3। तो आपका ये 39 डिफरेंस आता है। वैसे ये फ्लोकर एग्जैक्ट नहीं रहता, फ्लोकर का डाटा है बहुत आर्बिट्रेरीली टेस्ट रहती है लिक्विड लिमिट की, ठीक है। तो इस तरह से वाला है, नीचे का क्या हो जाएगा log 100 डिवाइडेड बाय 10 1 हो जाएगी। तो ये एक वे है। नाउ व्हाट विल बी प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिया है डाटा का, ये इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स गिवन WP इज गिवन द 28%। वी हैव टू कैलकुलेट द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ओके, दैट इज IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स
that is IP. It is represented by IP equal to WL minus WP, liquid limit minus plastic limit. So liquid limit from graph, it calculated from graph is the 51 and plasticity index is the 28. Okay, so 51 minus 28, it came 23%. ओके, तो अवर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू आई है 23%. तो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस flow index curve, and this curve is called as the flow curve. Flow curve nothing but this is straight line, that is the result curve drawn against the output of liquid limit test. Okay, तो I think you all of you understand it. अगर सपोज आपके पास सेमिलॉग ग्राफ पेपर नहीं मिल रहा है तो आप नेट से कहीं कैफे में जाके प्रिंट ले लो PDF और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो. कुछ भी दिक्कत रही, कुछ भी ये आपको प्रॉब्लम है तो फिर मुझसे पूछो. आई विल क्लियर योर डाउट्स. ओके, हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू.